Hello friends, this is Memuna Bombewala, your friend, telling you about organic chemistry, and we are going to take another basic concept today, which is of acids and bases. This is a very basic concept in chemistry. Let us go for any type of chemistry, but this is a very basic concept of chemistry. And in this video, we will be talking about how Arrhenius described acids and bases, how scientist Laurie Bronsted told us about acid and bases, and how scientist Lewis told us how did they define acid and bases. So let us talk about acids and bases. In the simplest term, acids are those जो खट्टे होते हैं, sour to taste, right? These are the simple terms of acids. Even one more thing that we understand about acids and bases is the litmus paper test, right? It is a litmus paper test. Right? Acids are those which will convert blue litmus to red, and bases are those which will turn red litmus blue. स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन होता कि कैसे याद रखें, मिक्स हो जाते, रेड ब्लू होता कि ब्लू रेड होता. मैंने ऐसा याद किया कि बेस जो है वो है अल्कली बेस जो है वो है अल्कली. कली मतलब गुलाब की कली रेड कलर की रहती, राइट? सो कली विल टर्न रेड टू ब्लू. अगर कली विल टर्न रेड टू ब्लू, सो रिवर्स विल बी अबाउट द एसिड. एक को याद करने की जरूरत है, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं. सो बेस विल टर्न या अल्कली विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और वाइस वर्सा होगा जब एसिड की बात हो जाएगी तब. So this is the litmus paper test. But here we are going to talk about the exact definitions what scientist Arrhenius gave us. Then we have Laurie Bronsted, scientist Laurie and Bronsted. And finally Mr. Lewis. ये अपने 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमको एसिड और बेस समझाए. और ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, ये साइंटिस्ट ने अपने एक्सप्लेनेशन में एनहेंसमेंट लाए. अरेनियस में लिमिटेशंस हैं, फिर लाउरी ब्रांस्टेड की लिमिटेशंस थोड़ी कम हुई, और लुइस ने वो सबको पार कर दिया. ठीक है. सो द अरेनियस इक्वेशन सेज दैट एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन एंड बेस इज अ सब्सटेंस which can donate a hydroxyl group. This is how Arrhenius told us about what is an acid and what is a base. मतलब for example HCl Arrhenius के हिसाब से एसिड है क्योंकि वो H आयन डोनेट कर सकता, या NaOH Arrhenius के हिसाब से बेस है क्योंकि वो OH आयन डोनेट कर सकता. तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करे या वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट करे वो बेस, जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड. लेकिन यहां पर एक मेजर लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये कि इतना इंपॉर्टेंट बेस जैसे कि अमोनिया NH3, आज हमको पता है कि अमोनिया इज अ बेस, वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट. तो अमोनिया ये बेस है, अरेनियस के हिसाब से तो नहीं है. Arrhenius is telling you that base is a substance which will donate a hydroxyl group. But Arrhenius definition fails to explain this. It fails to explain. Hence, Arrhenius has its limitation. It cannot explain basicity of simple compound like ammonia. तो Arrhenius की बात में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. जो Arrhenius ने बोला कि acid is a substance which can donate a proton and base is a substance which donates a hydroxyl group. इसमें कुछ limitations है, इसमें कुछ problems है. तो साइंटिस्ट लाउरी ब्रांस्टेड ने कुछ अच्छा सोचा. He said that acid is a substance which will donate a proton. मतलब he agreed to Arrhenius, but he changed the definition of a base. He said base is a substance which will accept a proton, which can take up a proton, is a base. Now see how he explains bases. For example, ammonia
can take up a proton and it can become ammonium. मतलब Lowry Bronsted now can explain the basicity of ammonia also. उसके हिसाब से acid HCl is still an acid, H plus Cl negative, right? So he can now explain the basicity of those which will not contain hydroxyl group also. तो उसके हिसाब से acid is a substance which can donate a proton, base is a substance which can accept a proton, correct? यहीं पर Lowry Bronsted से हमको एक कंसेप्ट और पता चला conjugate acid and conjugate base का. There is a concept called as conjugate acid or conjugate base. Now what do you mean by conjugate acid? What do you mean by conjugate acid? For example, this HCl releases a proton and a chloride ion, correct? तो ऐसे कंपाउंड जो अपने एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस रखते, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज HCl और उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा Cl माइनस, मतलब Cl माइनस और HCl में फर्क क्या है? एक प्रोटॉन का. तो HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है? क्लोराइड. या अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया इज अ बेस. इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन रहेगा? अमोनियम, बिकॉज इट इज टेकिंग अप अ प्रोटॉन नाउ, राइट? तो जो दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप कैसा? दैट दे आर डिफरेंट ओनली बाय मीन्स ऑफ अ प्रोटॉन. सो दिस इज अ बेस. तो इसका ये रिलेशनशिप इसके साथ क्या हुआ? ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड. HCl इज एन एसिड, तो क्लोराइड आयन क्या है उसके साथ? उसके कॉन्जुगेट बेस, राइट? तो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड हम उसको कब बोलते हैं? जब वो एक दूसरे से एक प्रोटॉन का डिफरेंस रखते तब, राइट? तो यहां पर हमने बात की काय की Lowry Bronsted definition of acid and base. Lowry says that acid is a substance which will donate a proton and base is a substance which will accept a proton. बट यहां पर फिर से लिमिटेशंस हैं. ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके पास प्रोटॉन्स है ही नहीं लेकिन वो तब भी एसिड है, या ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते, वो तब भी बेसिस हैं. तो ये एक्सप्लेनेशन दिया साइंटिस्ट लुइस ने. लुइस सेज दैट एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स and bases are substances which donates electrons, right? ये चीज को अच्छे से समझ लेते हैं. Lowry Bronsted की बात बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड कि प्रोटॉन देने वाला एसिड. देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर बात करते हैं HCl की. जो प्रोटॉन दे वो एसिड, राइट? जब वो प्रोटॉन देता मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता. इट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन. सी HCl ने अगर अपना प्रोटॉन दे दिया तो Cl के ऊपर क्या बचा? नेगेटिव चार्ज. मतलब क्या बचा? इलेक्ट्रॉन्स. तो वो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे. देखो मैंने अगर प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन देना मतलब क्या? H देना, लेकिन H जाता कैसा? अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाता. वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास छोड़ के जाता. तो जो प्रोटॉन देने वाला है वही तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी है. तो जो लॉरी ने ऐसे बोला प्रोटॉन डोनर, वैसे ही लुइस ने उल्टा घुमा के बोला. ही सेड इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो है वो दैट इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करे वो लुइस एसिड. भले उसमें प्रोटॉन हो या ना हो, जरूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग लाइक दिस BF3. When BF3 reacts with NH3 तो क्या होता? BF3 इलेक्ट्रॉन्स लेता और NH3 क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर है, NH3 इलेक्ट्रॉन्स
देता. So base is a substance which will donate protons and acid is a substance which will accept electrons. Correct? तो ये डिफरेंस है तीनों डेफिनेशंस में. Arrhenius is saying that acid are those which can donate a proton, bases are those which can donate hydroxyl group. But this is not correct because अमोनिया जैसे सिंपल बेस को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता. राइट? देन वी मूव टू लाउरी ब्राउनस्टेड. लाउरी ब्राउनस्टेड बोलता जो प्रोटॉन देने वाला वो एसिड, जो प्रोटॉन लेने वाला वो बेस. यहां पर भी कुछ लैक्यूना है. ऐसे कंपाउंड्स है जैसे कि BF3, यहां तो प्रोटॉन है ही नहीं, लेकिन BF3 या AlCl3 या FeCl3 ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम खास तौर से लुईस एसिड्स बुलाते हैं. इनमें प्रोटॉन नहीं है देने के लिए, लेकिन इनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की. हेंस दे आर एसिड्स. सो एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट प्रोटॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. बेसिस आर सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. That is all about the Arrhenius theory, the Lewis theory and the Lowry-Bronsted theory. Keep watching more videos on the basic concepts of organic chemistry. Thank you.